दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े रामानुजन कॉलेज ने अपने शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भगवद गीता पर एक अनिवार्य सर्टिफिकेट कोर्स पाठ्यक्रम बनाने का आदेश जारी किया है। पाठ्यक्रम को 20 दिनों की अवधि के लिए डिजाइन किया गया है और इसे 9 जनवरी तक पेश किया जाएगा। पाठ्यक्रम की कक्षाएं शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जा रही हैं। इसमें प्रतिभागियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन भाग लेने के लिए 950 रुपये का भुगतान करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल SP अग्रवाल ने शिक्षण स्टाफ को एक ईमेल लिखकर ऐसे कार्यक्रम में खुद को संवेदनशील बनाने के लिए कहा, क्योंकि पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS के अनुरूप चलाया जा रहा था। कॉलेज न केवल भगवद गीता के लिए बल्कि वेदों के लिए भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली का हिस्सा है। Training and sensitization of teachers with Indian knowledge system applicable in the modern education system was an important theme of this course. Another important thing was that this course is also relevant for the promotion of teachers. As far as the course contents are concerned, you can see it is very much academic oriented. It's not a parvachan of Gita. It's what is the content and its relevance in today's world. That was the thing. And for 18 days, because there are 18 chapters in Gita, best experts of the country are coming to deliver the lectures. There was also a feeling of the teachers that we are charging a nominal fee and we are making money. But let me tell you that we are spending much more than what we have earned. Also, the course was free for students. Course, also for non-teaching staff, only 50% fee is to be charged if they complete it successfully. So there is nothing of revenue collection in this. And the major thing was to sensitize our own staff and the society at large. And ultimately, there was nothing in this course that everybody joining does not mean that it is compulsory. It was an appeal to the teaching community that yes, if you can, you should. There are a lot of teachers who are on vacation. There are a lot of teachers who have gone on LTC. There are a lot of teachers who did not join, but we are not doing anything. We will be continuing these courses over a period of time. Every month or so we will repeat. So they will join at that time. So what is the harm? I don't understand why this controversy was created. सर, 23 दिसंबर को शुरू हो गया था। आप ये बताएंगे कि टीचर्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कैसा है टीचर्स का मिल रही है? 23rd को the first chapter and it is continuing. Today also we will be discussing, I think, 6th chapter. Now the experts have really explained how the Gita, its content, the conversation between Arjuna and Krishna is relevant in today's education system. This is also, they said, that this is the objective of the Ministry of Education, that it should be applicable. It is applicable in the new education policy. There are various courses, SAC and VAC courses, which are on Indian knowledge system. So we need to sensitize these teachers how to teach those courses. And this was one forum. We will also be doing some courses on Vedas, on Upanishads, and other relevant things which are important, which make our country distinct from the education system of the West. कॉलेज प्रिंसिपल के ईमेल में लिखा, यह कोर्स कॉलेज में भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र की स्थापना के अनुरूप है। इसे देखते हुए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से खुद को संवेदनशील बनाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि भगवद गीता को अनिवार्य सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में शामिल करने के फैसले से उन शिक्षकों को नाराज कर दिया जिनका मानना है कि इस फैसले से सांप्रदायिक मान्यताओं का प्रसार हो सकता है। शिक्षकों के संगठन डेमोक्रेटिक शिक्षक फ्रंट ने अनिवार्य पंजीकरण को वापस लेने की मांग की है। DTTF ने कहा, रामानुजन प्रिंसिपल SP अग्रवाल ने सभी शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को भगवद गीता पर एक पुनर्विचार प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अनिवार्य रूप में पंजीकरण करने और उसमें भाग लेने के लिए और निर्देश देने के लिए निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है।
DTTF ने कहा, शिक्षकों को गैर शिक्षण कर्मचारियों को आधिकारिक कर्तव्यों से परे शाम 6:30 बजे तक लगे रहने के लिए अवैध रूप से मजबूर करना और छात्रों की चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं के संचालन का अतिरिक्त बोझ अस्वीकार्य है। शिक्षा मंत्रालय आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा के बीच अंतर को कम करने के लिए छात्रों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली AICTE नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के MOE के तहत एक नई पहल है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में IKS के सभी पहलुओं पर अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य कला, साहित्य, कृषि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में हमारे देश की समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान को फैलाने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न होना है, जिससे भारतीय अपने पुराने इतिहास को पहचान सके। हालांकि विवाद बढ़ने पर कॉलेज ने इस आदेश को वापस ले लिया। कॉलेज के अध्यक्ष जिगर इनामदार ने बताया कि हमने 22 दिसंबर को गीता पाठ्यक्रम के लिए आयोजित उद्घाटन सत्र के दौरान इसमें अनिवार्य उपस्थिति की शर्त को वापस ले लिया था। यदि कर्मचारी पाठ्यक्रम में अगर शामिल नहीं होना चाहते तो उन पर कोई दबाव नहीं है। हालांकि मैंने सार्वजनिक रूप से उनको पाठ्यक्रम में शामिल होकर भागीदारी बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कर्मचारियों की उपस्थिति भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में उपस्थिति अनिवार्य की थी।